हाय एवरीवन। तो मैं कर देती हूँ। हाय गाइस, तो आज भैया is going to ask me some questions or just we are doing just a random podcast. अबे फ्रंट फेस करते हैं ना, बैक करी क्यों रहे और हैं? हाँ, तो मेरा वही तो फ्लाइट में अच्छा आता है ना। वो लगती लगा ऐसे हो। मैं अच्छी लग रही हूँ, पता है। मैं बाल खोल गलत फहमी है तुम्हारी। और ये मैं बाल गलत फहमी दुनिया में हर आदमी को होती है कि वो अच्छा लगता है। एक्चुअली अच्छा लगता है, उसको भी लग रहा है वो अच्छी लग रही हो, लेटी हुई है। पूछो उससे। प्रोफेशनल थे। Okay, so basically, this is not a podcast. This is a conversation between two cousins, and I have taken the exam of JEE Mains in 2012 and 13, and she is going to take the exam in next 2 years. And this podcast is all about कि भाई, why do you want to take this particular exam? Why? So I have given the title of this particular podcast, or we can say the conversation, is Born to Become an Artist, and I believe she is, and she has been forced to become a IITian. I'm not sure she will be or not, but yeah, definitely it's all about this. So let's start this conversation, and I strongly believe that this will definitely gonna hit or blow mind of multiple students around us or around everywhere who will gonna see this particular video. So let's start this. Hi Ashi. Hi. What's happening? तो भाई मेरे को पहले तो ये बताओ तुम। बहुत गंदा सी हो। कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे पहले ये बताओ तुमको करना क्या था? मुझे कंफर्म तो नहीं था, बट मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे या तो अपना म्यूजिक ही आगे बढ़ाना था, या तो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना था, और लाइक आरजे इज अ रियली वंडरफुल ऑप्शन वी कैन से। मुझे काफ़ी कुछ, लेकिन मुझे आर्ट में ही जाना था, बट नाउ यू नो। This is the reason we have given the title of this particular conversation, Born to Become Artist and Forced to Become IITian. So अभी मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि किसने कहा था कि मुझे कोचिंग जाना है मीट प्रिपरेशन के लिए? पहले तो मेरे को लगा था कि आई टेक कॉमर्स, और उसके बाद अब मैं कोई ऑफेंड मत होना, लेकिन कॉमर्स मैं इजीली कर लेती, इजीली तो नहीं बट मैं कर लेती, और देन आई विल बी प्रैक्टिसिंग मेरा गाना वगैरह एंड ऑल। पर उसके बाद फिर मुझे मेरी फैमिली ने ही फोर्स कर दिया कि मैथ्स लेने से दिमाग खुलता है। I was the one, definitely. एग्जैक्टली, बट मेरे को और भी, ही इज ऑलवेज राइट, पर मुझे और भी लोगों ने बोला था कि तुम मैथ्स लोगी, ये करोगी, और मेरे मम्मी पापा को एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रहती है मुझसे कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं जीवन का सब कर दूंगी। I'm gonna, hit someone's mind as of now, and multiple parents will gonna definitely gonna offend from me. भारत के 70 से 80% पेरेंट्स को यही लगता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है, बस वो पढ़ता नहीं है। एक्चुअली में वो नहीं होते हैं, पर उनको लगता है, तो दिक्कत यही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत के शायद 70% पेरेंट्स को ये भी लगता है कि आईआईटी और मेडिकल, वी कैन से डॉक्टर, ये सब बनना ही सबसे बढ़िया करियर है। तो बच्चों को मेंस, जेई मेंस और नीट की तरफ रखे होते हैं। नंबर पता है तुम्हें कि हर साल आईआईटी के लिए कितने, सॉरी जेई मेंस बोलते हैं, आईआईटी बार बार बोल रहे हैं, जेई मेंस बोलना चाहिए। जेई मेंस के लिए कितने बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल? 13 lakhs. So let me show you data. I have done a lot of research over there just because I was working on this particular R&D since last 3 years. So the point I got in my mind right now, so it is continuously raising. So 12 lakh था, फिर 13 हुआ, 14 हुआ, और this year all about I believe 14 lakh 50,000 students are going to take this exam. And the shocking part is this: we have seats in IIT around 18 or 17,000. I don't have the exact number, but it's all around 70,000, and 26,000 around seats from the NIT. I'm not sure, it's around 26,000, ऊपर नीचे हो सकता है. And if we take the colleges like government colleges and good kind of private colleges like BITS Pilani kind of colleges, so we have a good number of around 10,000 lakhs plus. So we can say 50,000 seats are
for those kind of students who are brilliant and want to pursue their career in engineering and will want to become a good engineer. Now, question is that what is about those students who got remains? Like we can say around 30 lakh? What about those? And do you believe that you can to कर सकते हैं 50,000 की रैंक नहीं, मैं इतनी श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। इवन इफ मैं पढ़ लूँ 8 घंटे, वैसे आई बिलीव कि मैं 8 घंटे पढ़ ही नहीं सकती हूँ। मैं कोचिंग गिटार बजा सकती है 8 घंटे? मैं 8 घंटे गिटार कंटिन्यूसली बजा सकती हूँ बिना रुके, बिना पानी के। कंपोजिशन बनाने में मजा आता है तुझे? बहुत ज्यादा, है ना? लाइक मैच लगाने में मजा आता है? मैंने आज तक 40 मिनट से ज्यादा मैथ्स लगाई ही नहीं है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आईआईटी बने। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं आईआईटी करूं, और इट्स नॉट लाइक कि वो मतलब मुझे फोर्स कर रहे हैं कुछ, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो चुकी हैं कि फिर अगर मैं बोलूं कि मुझे नहीं करना है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? लेट मी सॉरी टू इंटरप्ट। तो बेसिकली होता क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने देखा कि मेरे बच्चा पढ़ नहीं रहा था, बिना पढ़े 70% ले आया वो। हाँ, सी हैज गॉट अ गुड मार्क्स इन द 10th एंड ICSE इफ आई एम नॉट रॉन्ग, so गुड मार्क्स, बट हम पेरेंट्स लोग रहे तो पढ़ लेगी 90 ले आएगी, पर उसका कंफर्ट जोन ही 70 तक का है ना यार, राइट? एग्जैक्टली। तो तुम क्या सोच रही हो अभी करने का? अभी तो मैंने करेंटली कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, 11 झांसी। तो वहाँ पे अभी एक तो कोई कोटा से नया कोचिंग आया है, पहला ही सेशन आई है, तो मैं वही कर रही हूँ। और वहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर वो उनको ही पढ़ा पाएंगे ना जो पढ़ना चाहते हैं। मैं तो बता रही हूँ। तो बेसिकली यू वांट टू बिकम अ आर्टिस्ट, Yes. you love music, you have a soul of music inside Exactly. you, Yes, exactly. और अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए, हाँ. बट यू डोंट नो हाउ टू परस्यू इन दिस पर्टिकुलर करियर। Exactly. नहीं हाँ. पता है क्या करना चाहिए, कैसे आगे जाना चाहिए। इवन मुझे भी नहीं पता, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। योर फील्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय फील्ड, बट आई कैन गिव यू एडवाइस दैट IIT इज नॉट अ गुड चॉइस जस्ट बिकॉज द numbers are very huge and college seats are very less, and the huge difference between it. 13 lakh 50,000, 14 lakh students are giving the exam, and 50,000 seats for those students. This is completely devastated for any kind of student. तो ये सोचना एक बहुत अजीब लगता है कि आप एक ऐसे थर्ड क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे जहाँ से निकलने के बाद ना तो आपका प्लेसमेंट रहेगा, और 4 साल बाद आप उसी लिस्ट में आओगे जैसे कि रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी में एक पोजीशन पे 5-10 लोग होते हैं। लाइक कैसा कि 1000 पोजीशन निकली है, 10 लाख बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा है। दिस इज द कंडीशन। एंड अगर तू न्यूज़ेस उठा के देखेगी तो फॉरेन मीडिया बोलता है कि 85% ऑफ इंजीनियर्स आर इंडियन नाउ नॉट एम्प्लॉयबल। सॉरी, स्लाइड को चेक कर देना, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो फॉरेन मीडिया बोलता है कि 85% इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया आर नॉट एम्प्लॉयबल, जस्ट बिकॉज जो पढ़ाई हो रही है इंजीनियरिंग में बहुत अजीब हो रही है, क्योंकि वो पढ़ने लायक है नहीं है। छोटे छोटे कॉलेज खुले हुए हैं, बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, जो तक 13-14 लाख बच्चे बचे हैं ना, वो कहाँ जाते हैं? वो यही करने जाते हैं ना, 10 लाख तो इंजीनियरिंग करने जाते हैं ना। हर साल इंडिया से 15 लाख बच्चे निकल रहे हैं, 1.5 मिलियन, और वो कहाँ जा रहे हैं? ये भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके मदर फादर को लगा कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम राइटर और सम काइंड ऑफ थिंग। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ, मुझे बनना था। मैंने बोला कि भाई मुझे मैथ नहीं लेनी, मुझे BA करनी है। आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू द मास कम्युनिकेशन दैट टाइम, and I decided to take the subject and will not proceed in particular thing. And I got a news from my mother. She's going to take kind of decision कि भाई तू नहीं कर पाएगा और मैं हाल तक आ जाएगा, मर जाऊँगी, कर लूँगा kind of thing. और मुझे मेरी मम्मी का BP हाई लो हो गया था, सिंपल सी बात करते हैं। उनका BP हाई लो हो गया, ये तुम मैथ लो। तो भैया मैंने मैथ ले लिए, मैं इंजीनियर बना, मैंने 4 करियर बदले, स्टिल आई एम सर्चिंग फॉर द राइट करियर, और अब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और प्रॉब्लम ये की है, जो आप नहीं बनना चाहते थे वो आप बन गए हो, आप अब कुछ और बनना चाह रहे हो, क्योंकि अब आप वो बन नहीं सकते जो आप बनना चाहते थे। इट्स ऑल अबाउट द टाइम। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम अगर आज तुम्हें फोर्स किया गया 2 साल और तुम जाती हो, पढ़ने जाती हो, कोचिंग जा रही हो, डेली तुम कोचिंग जा रही हो, प्रैक्टिस कर रही हो, 4-5 घंटे पढ़ रही हो, आई एम नॉट श्योर कि 4-5 घंटे की पढ़ाई मेंस के लिए इनफ होती कि नहीं होती, क्योंकि जेईई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है शायद इंडिया में टॉप 2nd या टॉप 3rd रैंक पे आता है, टफेस्ट एग्जाम में। तो तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगे फिर उसके बाद? जो पेरेंट्स बोलेंगे वही करके जाओगे फिर आगे?
नहीं, उसके बाद मैं आगे नहीं करूँगी। मेरा प्लान ये है कि अभी तो मुझे जे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि करना पड़ेगा। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। एग्जैक्टली। तो राइट नाउ आई विल प्रिपेयर फॉर जेई। उसके बाद भगवान की कृपा से अगर मेरा जेई निकल गया मीन्स कृपा से नहीं निकलता है, बाकी कोई मतलब कृपा से नहीं निकलता है। यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क, यू नो हार्ड वर्क। इफ माई माइंड चेंजेस, वो नहीं होगा आई गेस, बट एक लाइक 30% चांस है कि मेरा माइंड चेंज हो सकता है, पर उससे ज़्यादा 80% है कि 80 होता है ना, सो 80 होता है। ये तो मैथमेटिक्स है यार। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि एक पेरेंट्स को बच्चों को हमेशा सबको सब सुनते हैं कि सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेते हैं हम, महान सचिन तेंदुलकर सॉरी, और विराट कोहली एग्जांपल लेते हैं। अगर उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा होता कि जाओ आईआईटी प्रिपरेशन करो तो क्या वो अच्छे क्रिकेटर बन पाते? नहीं। पेरेंट्स को पता है, पर अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं, तुम जाओ क्या करो, आईआईटी करो, तुम क्या करो, डॉक्टर बनो। इस साल 22 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया नीट का। गवर्नमेंट सीट 50,000 है और प्लस कर लो प्राइवेट तो 1 लाख के आसपास सीट है। 21 लाख बच्चे फिर प्रिपरेशन करेंगे या उल्टे सीधे कोर्स करेंगे। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, बट ये कंडीशन है मार्केट की। इट्स नॉट अबाउट बच्चे को नहीं करना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट बच्चे को जो करना है उसको वही करना चाहिए। द रीजन बिहाइंड इट, दे डू नॉट नो द एग्जैक्ट करियर फॉर देयर चॉइस। उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली वो क्या कर सकते हैं, उनकी चॉइस का करियर क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हाउ मेनी एग्जाम्स यू नो यू कैन टेक आफ्टर 12th और 10th? I know about NDA, NEET, J, you told me about SAT, or I'm not sure exactly, but I can give a probable number for this. So I have done a research for this, and plus 200 exam or career you can choose. But now again, we have another point over here. Like you want to become artist. Now I do not have any idea. You don't have you literally don't have any idea कि इसमें कैसे पतली बनना है, क्या करना है। तुम्हें BMC पता है, मास मीडिया है, शायद आई डोंट नो कुछ तुम आर्मी बन पाओ, क्या करोगी। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ करियर। हम लोग जो इसे सुनेगा शायद वो कभी एडवाइस कर पाए, कोई किसी तक पहुंचे कि भाई राइट तुम क्या करियर चूज कर सकते हो, कैसे जा सकते हो में। यू वांट बिकम अ गिटारिस्ट, यू वांट डू काइंड ऑफ कंपोजिशन, ऑल काइंड ऑफ थिंग। कुल मिला के म्यूजिक इंडस्ट्री में यू वांट टू प्रोसीड योर करियर, राइट। तुम्हें पता नहीं, इसमें डिग्रीज भी होती हैं आजकल, यू नो म्यूजिक इंस्टीट्यूट में डिग्रीज होती हैं, यू नो। yes, इंजीनियरिंग हो रही है इसमें एक्चुअली, एंड साउंड इंजीनियरिंग होती है, पता है? नहीं, साउंड इंजीनियरिंग होती है, यू कैन परस्यू दिस करियर आल्सो। आई एम नॉट श्योर बट होती है, इंडिया में होती है, मुझे नहीं पता, होती Google है। करेंगे। साउंड इंजीनियरिंग होती है, वी कैन डू गूगल, होती है तो होता है एक्चुअली। तो मैं साउंड समझ में आते हैं, टोल्ड मी अर्लियर दैट ये कुछ प्ले कर दो, मैं बता दूंगी क्या चल रहा था, क्या म्यूजिक था, कौन सा कॉर्ड लगा हुआ है ना, गिटार में प्लेयर को बता दो तुम कॉर्ड कौन सा चल रहा है। व्हाई नॉट चूजिंग दिस करियर नाउ? अभी क्यों नहीं, क्यों क्यों रिस्क लेंगे? ठीक है, व्हाई यू कांट फाइट, टेल मी ऑनेस्टली, क्यों अपने पेरेंट्स से फाइट क्यों नहीं कर पाते बच्चे? उनके एक्सपेक्टेशंस देंगे रहना चाहते हैं, करियर खराब हो जाए अपना। तेरे क्या हो अब जाएगा। सुनो, जब तुम बड़े हो गए तो उनको फीड कैसे करा पाओगे? ऐसा करियर चूज करके तुम अर्निंग ही नहीं कर पा रहे अच्छे में, या खुद सेटिस्फाई नहीं हो। I guess that's their problem. नहीं, फिर अब उतना तुम पर पैसा बर्बाद करेंगे तुम्हारी क्लासेस में, शायद 1 लाख रुपीज पर ईयर फीस होगी मेरे ख्याल से आया कोचिंग की, उनमें भी ज़्यादा हो अराउंड। I should have told him earlier about this. अभी there's no going back. I'm not telling you to going back. I'm just. This is a conversation between two cousins. Okay. I'm, just double of your age. I have taken the exam. I was not able to get a good marks over the time, but I took drop for 1 year. कि भाई एक बार फिर से करते हैं, अब तो फोड़ देंगे। Just because I बड़ा, ज्वाला भड़क गई थी कि अब तो कर डालेंगे, अफले। और फिर मैं उसके बाद नहीं कर पाया। So because I never wanted to go this particular field ना यार, कभी थी ही नहीं मेरे लिए, मैं हमेशा से पता था मुझे नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया, मैं बंक मारने लगा। तो वही मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि क्या अगर तुम ये कर रही हो, फीस कर रही हो, पेरेंट्स का तुमसे क्वेश्चन आएगा, हमने तुम पर इतना पैसा बर्बाद किया, तुम रिजल्ट नहीं दे पाए,
फिर तुम्हारे पास क्या क्या जवाब होगा? तुम फाइट करोगे कि आपसे मना तो किया था मैंने, Exactly, of course. बट देयर इज नो गोइंग बैक ना। मैं स्पीचलेस हो रही हूँ बीच बीच में। आई एम नॉट गोना पोस्ट दिस, मुझे नहीं पता हम पोस्ट करेंगे, तुम बड़ी हो जाओ इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद कहीं पोस्ट करें, मे बी कभी करें, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट डेफिनेटली वी गोना पोस्ट इट, Okay. डेफिनेटली। ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि जब तुम निकल बड़ी हो जाओगी करोगे उसके बाद क्या करोगे फिर? अगर तुमने इसमें परस्यू किया नहीं निकला एग्जाम, मैं तुम्हें देख के बोल रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एवरेज बच्चे निकाल लेते हैं, सब कर लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है 2 साल का, तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है, बट इट्स ऑल अबाउट कि तुम करियर कुछ और चूज करना चाहते हो, तुम्हारा दिल कहीं और है, तुम अपना जान कहीं नहीं लगा रही हो, वाला दिमाग आएगा वो, समझ रही हो? समझ रही हो? Yes. तो उससे फिर तुम्हें जिंदगी में फाइट करना पड़ेगा। तो या तो तुम्हें देखो आईआईटी का ही हम बार बार आईआईटी को बोल रहे हैं क्योंकि कॉलेज हमारे थॉट में ये रहता है मैं आईआईटी में जाना है, इसलिए आईआईटी आईआईटी बोल रहे हैं हमारे बार, इट्स मेंस, जेई मेंस। Means. तो बेसिकली वो एक ऐसी ऐसी जर्नी है ना, उसमें तुम कुछ और एक्स्ट्रा बैगेज नहीं ला सकते हो, मैं बहुत प्रैक्टिकली ले जा रहा हूँ तुम्हें, तुम उसमें एक्स्ट्रा बैगेज ले ही नहीं सकते हो जर्नी में। लाइक मेरे को साइड में अगर म्यूजिक प्रैक्टिस करना हो तो वो भी नहीं हो पाता है, मुझे उसको नहीं हो नहीं पाता मिलता है टाइम इसलिए। इन लाइफ एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट एंड एवरीथिंग हैज अ डैमेज, Exactly. हर चीज का कॉस्ट एंड डैमेज होता है। तुम अगर जर्नी में जा रहे हो उसके, लाइक हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, 7 kg का हम बैगेज ले जा सकते हैं अंदर, फ्लाइट के अंदर ले जाते हैं, केबिन में रख सकते हैं 7 kg, और 15 kg का एक 20 kg का एक भाई तुम अपना बैग ले लो, 15 kg 20 kg जो भी रहता है, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है। अब तुम अगर आईआईटी की जर्नी में, सॉरी जेईई मेंस की जर्नी में अगर एक एक्स्ट्रा बैगेज लेके जाती हो, हाँ अगर मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्किंग फलाना ठिकाना जो भी होती है वो आजकल अगर तुम वो हो, और तुम हो भी थोड़ा सा हो अच्छी इंटेलिजेंट हो आर्ट में, बट अगर उनको ला के लोगे तो तुम नहीं कर पाओ, क्योंकि वो एक एम वाली जर्नी है, अर्जुन वाली जर्नी है कि निशाना तीर और सट्ट, वहां पर ये नहीं कि पेड़ भी दिख रहा है, बल्ब भी दिख रहा है, वो एसी भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। फिर वहां दिखती सिर्फ एक निशाना होना चाहिए, अर्जुन की तरह होना चाहिए उसे। आईआईटी जेई मेंस द एग्जाम ऑफ अर्जुन एंड द एम, मैं तो आज देयर इज नो बिटवीन इट। अगर तुमको उस एम के बीच में कुछ भी दिख रहा है ना, तुम निकाल ही नहीं सकते एग्जाम, एंड आई एम नॉट, मैंने निकाला नहीं बट आई एम श्योर अबाउट इट, जस्ट बिकॉज आई हैव डन अ प्रिपरेशन फॉर इट। एम वही होना चाहिए। तुमने अगर उसमें ऑप्शन भी रखा कि अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो हो ही नहीं सकता कभी। डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट इन द डिक्शनरी ऑफ जेई मेन, वो वर्ड ही नहीं है, दिस इज अ सिंगल पाथ, एंड आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू एंड आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू। तुम 10th क्रॉस की है, डेफिनेटली आई शुड टेल यू कि भाई एक अच्छे भाई की तरह नहीं, मेरी बहन को आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसे एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए, वो मैं करना नहीं चाहता कि नहीं तू या भीड़ का हिस्सा बन। तो या तो मैं कर सकती हूँ कि प्रिपरेशन कर लेती हूँ बट वो एग्जाम ना दूँ। एग्जाम तो अब करते हैं कि अब आदमी जिसका चल रहा है, देखो मैं, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं वो एडवाइस कर सकता हूँ। इंडिया में क्या है कि एडवाइस फ्री में मिलती है, तो मैंने जितना पढ़ा मैं एडवाइस दे दूंगा, मैंने किया है वो। अब तुम किसी कॉमर्स वाले से बोलोगे वो कॉमर्स की एडवाइस देगा, जिसने जो किया है तो वो एडवाइस देगा। तो मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ कि अभी तुम्हें 11th 12th के लिए प्रिपरेशन करना था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। स्ट्रीम अच्छी है, बेस्ट स्ट्रीम है, आपका एनालिटिकल माइंड चलता है इसमें, है ना, आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करता है, चीज़ें सॉल्व करते हो, समझते हो, तो इट्स वर्क फॉर यू, गुड स्ट्रीम आई वुड से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग करके डेफिनेटली और अच्छे से करो, प्रिपरेशन करो, एग्जाम देने की कोशिश करो, बट व्हाट यू हैव टू डू, कम से कम 2 से 3 घंटे अपनी आर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, और 4 घंटे देखना है, क्योंकि मुझे, मेरा मानना है स्टूडेंट लाइफ में होता क्या काम है, खाना सोना बट पढ़ना। स्टिल अगर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो मैं वहाँ जाती हूँ लाइक 7:30 बजे जाती हूँ, 12:30 बजे मेरा कोचिंग खत्म होता है और मैं 3-4 बजे तक घर आती हूँ। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, या तो मैं उस कोचिंग का होमवर्क कर लूँ, या फिर मैं अपने स्कूल का कुछ कर लूँ, या तो मैं सो जाऊँ। अब यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि फिर आर्ट छूट जाएगा, और वो प्रैक्टिस का खेल है, हाँ एग्जैक्टली। हाँ प्रैक्टिस में वुमन परफेक्ट, तो वो करना पड़ेगा, फिर कैसे करूँ?
भगवान भरोसे। तो फिर आर्ट छोड़ना पड़ेगा। देखो आज हम एक रीजन पे पहुंचते हैं, या तो तुम्हें नीट प्रिपरेशन कर, जेई प्रिपरेशन मैं करनी, आर्ट नहीं छोड़ सकती। तो तुम्हें फिर 4 घंटे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 4 घंटे करो, फिर तुम उसको सिर्फ 11-12 के हिसाब से पढ़ो आर्ट में। पर ये नहीं होना चाहिए कि तुम फिर आर्ट भी नहीं कर रही हो अच्छे से, उसमें भी आलती कर रही हो। आर्ट में आर्ट से कर ही नहीं सकती। लाइक अगर मेरा हो गया कि मुझे ये करना ही है तो आर्ट में मैं आर्ट से कर ही नहीं तुम सकती। साउंड इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहोगी क्या? अगर तुम्हें पता चले साउंड मैंने इंजीनियरिंग, पता ही क्या होता है। अगर तुम्हें पता चले कि इसमें इंजीनियरिंग होते हैं, इसमें मिलती हैं, ब्रांचेस हैं, तो लाइक और उसके लिए भी जेई ही क्रैक करना पड़ेगा। नहीं आप और अच्छे वाले से कर सकते हो, बहुत सारे जी क्रैक कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो अगर वो कर लो तो वो तो है ही प्लस यार, वो तो फिर बेस्ट है। पर तुम्हें पता है कोई लोग आईआईटी से ड्रॉप कर लेते हैं और अच्छा कुछ हाँ। करते हैं। हाँ, ड्रॉप मैं नहीं लेने वाली। नहीं आईआईटी कॉलेज से ड्रॉप ले लेते हैं हैं? 3rd ईयर 2nd ईयर में। ऐसे बहुत से किस्से मिलेंगे जिन्होंने आईआईटी से ड्रॉप लिया है, वो कुछ और कर गया और कमाल कर गया, क्योंकि उनका मन ही नहीं था वहाँ जाने का, बस वो अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो एक काम करो, फिर तुम अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए खूब सारा पढ़ लो, एग्जाम क्रॉस कर लो, दिखा दो भैया मैं एग्जाम, एग्जाम क्रॉस करा तो मेरा आर्ट छूट जाएगा। वो तो छूट जाएगा। फिर 2 साल बहुत लंबा समय हो जाता है, क्या कहते हैं। एग्जैक्टली 2 साल तो बहुत ही होता है। फिर क्या मैं करोगे? 2 महीने में कॉर्ड्स भूल जाती हूँ। कोई भी भूल जाएगा। मैं तो सीख नहीं पाया गिटार आज तक यार। हाँ, इनको और ये सीख नहीं पाया। ये बचपन में 5 साल से गिटार प्ले करती है, इतना बढ़िया प्ले करती है, सब करती है। ये सारा टेस्ट घर है। बट यार ऑनेस्टली यार, आई ऑलवेज वांटेड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई तू अच्छा कुछ करती, आर्ट में जाती, कमाल करती, क्योंकि तेरे अंदर था वो। हम्म। था क्या है, आज भी है, बट वो थोड़ा थोड़ा लैक कर देता है। फिर कैसे करेंगी? या तो भी मैं सिर्फ 11 12 के हिसाब से पढ़ लूँ और अपने आर्ट और अपने आर्ट पे पूरा ही फोकस करूँ। क्लास जाओ, क्लास तो जाना पड़ेगा। फॉर म्यूजिक अच्छा देखो एक बात सुनो, अगर अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, स्कूल जाते अगर तुम, मैं नहीं जाती। अगर मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर स्कूल जाते तो कितना 5-7 घंटे तो देते, 5 घंटे लगता है ना स्कूल, हाँ, हम 5 आवर्स तो आपने 5 स्कूल आवर्स ओके। दिया। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 क्लासेस जाने पड़ते हैं, बाद में 5 3 8 जाना ही पड़ता है, 5 3 8 आवर्स देते ना। उसको अभी तो आर्ट करना पड़ता ना, उसका कैसे करते हैं? थिंक लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। तब मैं रात को बैठ जाती है ना? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा होमवर्क नहीं होता, क्योंकि कोचिंग ले रखी है मैंने और वो बहुत ज़्यादा लाइक एक क्लास होती है और एक क्लास में वो इतना सारा पढ़ा देते हैं कि अगर आप एक क्लास में मिस कर दो तो नेक्स्ट आपको कुछ समझ नहीं आता है। हाँ ये तो पंगा है। वो एकदम आप बस ऐसे बैठे रह जाते हो कि मैं कहाँ आ गई। रॉकेट साइंस लगती है वो पूरी। वो रॉकेट साइंस है एक्चुअली। रॉकेट साइंस इज इजियर आई गेस। हाँ रॉकेट साइंस इज इजियर, भाई राइट, अग्री। तो पढ़ा नहीं। तो इसको यार, इसका कोई सॉल्यूशन हम दोनों को मिलकर निकालना है। इसका सॉल्यूशन ये अभी बन रहा है कि मैं कोचिंग जाऊँ, बट इसमें पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो लेट इट बी। लेकिन जैसे अगर मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं वो मेरी फैमिली मेरे म्यूजिक वगैरह में लगा देती तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता, उनके लिए भी मेरे लिए भी। और ये बात पेरेंट्स समझते नहीं और बात है। पेरेंट्स समझते हैं, उनको लगता है कि म्यूजिक वेस्ट है अभी फिलहाल के लिए। वेस्ट तो नहीं है पर हाँ है। अब कोचिंग में इन्वेस्ट करें वो वेस्ट नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स अगेन आई विल गोना एम्पैथाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। पेरेंट्स को लगता है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल नीट 2 फील्ड्स आर बेस्ट फॉर देयर। तो पेरेंट्स हमेशा अच्छा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बेस्ट करियर चाहते हैं, पर प्रॉब्लम का को बेस्ट में 2 चीजें पता है ना, हाँ। उनको तीसरा बेस्ट पता नहीं है ना। दिक्कत ये इनको एक्चुअली जमाना ऐसा है कि पेरेंट्स को लगता है कि इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हाँ। करियर मिला नहीं मिला। हाँ। लड़कियों को लेकर ज़्यादातर वैसे ही पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, लड़का हो गया तो ठीक कर ले जो करना हो। लड़कियों को लेकर थोड़ा सा वो प्रोटेक्टिव रहते हैं, इस फील्ड में देखते हैं कहीं जाना पड़ेगा, मुंबई आ रहा है, केसेस देखते हैं, ऊपर से मैं सिंगल चाइल्ड तो ये सब चीज़ें देखते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहते हैं। हाँ। इवन आई एम वेरी प्रोटेक्टिव फॉर यू, बट मुझे पता है कि अगर आप बच्चे को पंख दे रहे हो ना तो उड़ने की भी आज़ादी दो उसको, या फिर पंख मत दो। सही है। मेरा ये पंख दिया तो उड़ने की आज़ादी देनी चाहिए, नहीं तो मत दो फिर तुम। बट वो हमें पता है क्योंकि मैं दूसरे जरिए से देख रहा हूँ, बट वो पेरेंट्स को लगता है नहीं यार बच्ची ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, करियर क्या होगा, ये प्रॉब्लम है। बट उनको नहीं पता है लॉट ऑफ करियर इन द मार्केट यार। तो बेसिकली अभी तुम्हारे पास ये है, तुम अपनी क्लासेस जाओ और एक्स्ट्रा मेहनत करो। लाइक अगर मैं क्लासेस जाती हूँ तो मैं क्लासेस के लिए मेरी क्लासेस के पास में ही है एक क्लासिकल सिंगिंग का कुछ, मुझे
पता नहीं है, तो या तो मैं क्लासेस जाके डायरेक्ट उधर जाऊँ खुद से, फिर वहाँ से क्लास डायरेक्ट सिंगिंग भी सीखनी है। क्लासिकल सिंगिंग ऑफ कोर्स, वोकल्स इंपॉर्टेंट है, या तो फिर मैं घर में ही लाइक कॉम्पोजिशन एंड ऑल लाइक दैट सेल्फ करो, करना पड़ेगा क्योंकि रास्ता नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर तुम पढ़ रहे हो तुम्हें 3-4 घंटे देने हैं, तुम 3-4 घंटे में आराम से दे सकती, 3-4 घंटे देख सकती हूँ। तो अब तुम्हारे साथ 2 प्रॉब्लम है। पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है बच्चे फ़ोन चलाते हैं, तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ हाँ है। है। तुम फ़ोन एक्सेसिव यूज़ करती हो। अभी अभी भी देखा, मैंने घर में भी देखा, कई बार देखा है। मैं तो देखो, सोशल मीडिया से तुम्हें थोड़ा दूर होना पड़ेगा, बट तुम्हें ज़रूरी है, पर अपने पोस्ट करो, चीज़ करो, उसका यूज़ करो इन अ डिफरेंट वे। फ़ोन यूज़ करो, डिफरेंट वे में यूज़ करो, ठीक है? अभी मेरा ब्रेन वॉश बोल सकते हैं। अभी मैंने जब कोचिंग ज्वाइन करा था, तब मैं रील्स बनाती थी इंस्टाग्राम पे, गाने की, गिटार वगैरह की। तो लाइक पापा ने वो रील्स मेरे टीचर को दिखाए और ये सेड कि अगर तुम ये कर रही हो तो तुमसे जेई कभी जीवन में निकल ही नहीं सकता है। तो बोलना है जेई निकालना भी तो नहीं है ना। तो उधर भी उनके सामने थोड़ी बोल सकती हूँ जो जेई की कोचिंग पढ़ा रहे हैं कि मुझे जेई निकालना ही नहीं है। और मेरे पापा से, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने मेरे पापा से पूछा और पापा ने बोला हाँ निकालना है। उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा ना। अब ये गलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की। आपने एक बच्चे को एडमिशन दे दिया, पेरेंट्स से पैसे ले लिए, क्या आपने बच्चे का टेस्ट भी लिया कि बच्चा निकालो, उससे पूछा भी? उसका आपने नहीं, लेते ही नहीं ना। उधर देखो तुम्हारा एग्जाम हुआ, मेरा कोई अभी मेरे टेस्ट मतलब बाद में हुआ भाई। एक क्या जेई, मैं मेरा क्वेश्चन उन कोचिंग सेंटर वालों से ये है, क्या जेई मेंस को निकालने के लिए सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स लगता है? क्या एडवर्स क्वेश्चन नहीं लगता बच्चे का? क्या ईक्यू नहीं लगता? क्या आईक्यू नहीं लगता? क्या इमोशनल क्वेश्चन मैटर नहीं करता? लॉजिकल थिंकिंग मैटर नहीं करती? एनालिटिकल माइंड मैटर नहीं करता? दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इंस्टीट्यूट वाले कभी ये टेस्ट करते ही नहीं हैं। बाद में होते हैं, जब कभी आपने पूछते फीस ही सबमिट कर दी हो तब आप टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जेई लेवल का टेस्ट ओएमआर भर रहे हैं, आप कुछ नहीं रहे, जय माता दी भी कर रहे हैं। BCD करके। हाँ। तो ये गलत है, ये गलत है। बच्चे को देखो तो पहले उनको ही बताना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई उनके पेरेंट्स को पता है बच्चा आपका नहीं असला है, उसका टेस्ट जहाँ है आपको वहाँ भेजिए, पर ये उनको पैसा चाहिए, उनकी भी गलती उनको है। पैसा चाहिए ऑफ कोर्स, वो सब बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना business कर रहे हैं। उनका कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स, ये पूरा बिजनेस ही हो रखा है। बिजनेस है वो actually। ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसमें पैसा आ रहा है। तो वो है भी नहीं है नहीं है यार। इसके लिए फिर तुम्हारे पास वो 2 तरीके हैं सिर्फ। तुम अपना पहले तो तुम अपना जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही हो उसको अपने पॉजिटिव वे में यूज़ करो, अपने इनकम के लिए, अपनी पर्सनैलिटी अभी के लिए। लाइक मेरा माइंड ना उतना खुला हुआ नहीं है जितना पहले था। पहले लाइक मैं रात में सो रही हूँ और मुझे एकदम से कुछ कंटेंट आता था और मैं लिख लेती, पर मैं तब छोटी थी, तब मैं उतना वो ध्यान नहीं दिया। अब मेरे में उतने आते नहीं है थॉट्स। क्योंकि इसका रीज़न है ना, तुमने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा अजीब कर लिया है। तुमने फ़ोन्स का यूज़ करके अपने आप को इन्वॉल्व करके, अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करके सब चीज़ों में अपने आप को बेकार कर लिया है ना। इस टाइम कि तुम अपने आप को रिबूट करो। रिबूटिंग इज़ वेरी इजी इन लाइफ। रिबूटिंग, फ़ोन रिबूट बटन दबाना है, इंसान रिबूटिंग उतनी ही आसान है, बट वो अगर मन में ठान ले दो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम इस कन्वर्सेशन के बाद जाके घर जाके सो के आए, हमारा में क्या होगा, मैंने तो बकचोदी कर ली और निकल गए हम। अगर ये सोच जाके आ रही तो फिर अलग पार्ट है, बट अगर तुम रियली सोचो कि तुम्हें कुछ करना है, तो तब सबसे पहले शुरू करो, अपने आप को रिबूट करो, सबसे अपने आप को माइंड को फोर्स करो कि वो एक फोकस्ड वे में जाए, ठीक है? डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है। Always remember one thing, without hard work, your dream is just your desire. I told you this particular line multiple times if you remember. Without hard work, your dream is just a desire. आपके सपने आपकी इच्छाएं हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो 7 घंटे क्लास पूरी करो, फिर उसके बाद आओ अपनी गिटार वटेवर इंस्ट्रूमेंट यू प्ले उस पर मेहनत करो, खूब मेहनत करके उसमें आगे एग्ज़ाम निकलता है निकलता हो अलग पार्ट है, बट तुम इसमें निकल जाओगे, ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले घूमना फिरना, दोस्तों का मस्ती, ये सब जिंदगी भर चलेगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कभी खत्म मेरा खत्म हुआ क्या? नहीं, कब से देख रही हो मुझे? पैदा होती हूँ। हाँ, तो फिर पहले तो तुम देख रही हो, मैं कर रहा हूँ मस्ती, आज भी रुकती कभी मस्ती करता हूँ, मस्ती करता हूँ, घूमता घूमता, कुछ खत्म हुआ क्या? तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वो कभी रुकता ही नहीं है, चलता रहेगा। तो अभी अभी अपने ऊपर काम करो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years, for next 5 to 6 years, this is the time that you can build yourself.
उसके बाद ना देयर इज नो गोइंग बैक। जब मैंने बोला देयर इज नो, अभी तो गोइंग बैक है, बट आफ्टर 6 ईयर देयर इज नथिंग गोइंग, नथिंग, कुछ होगा ही नहीं बीच में। तब पीछे मुड़ूंगी, देखो मैंने कुछ समय कर ली थी ना, मजा आ जाता, ये शुरू कर ली थी तो अभी पढ़ो और इस पर मेहनत करो, डबल मेहनत करो। क्या दिक्कत है मेहनत करने में? तुम्हें कोई पैसे कमा के लानी नहीं घर में, है ना, पैसे तो कमाने नहीं है, पैसे कमा के ला रही हो घर में नहीं। अभी क्या काम है, बस जो तुम्हें काम दिया जा रहा है वही काम है ना, तो वो काम ही यही है, पढ़ो और अपनी इसको प्रैक्टिस करो। 8 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे गिटार, 8 से 14 10 घंटे हैं तुम्हारे पास, 8 घंटे सो, 2 घंटे तुम्हारे हो गया। मैं आलसी हूँ, आलसी मुझे हो, रियलाइज हो तो रहा है फिर तुम अभी, दोनों चीजें नहीं कर पाओगी, क्योंकि हाँ। आर्ट भी मेहनत मांगती है। मुझे रियलाइज हो रहा है अभी कि मैं आलसी हूँ, मैं कर सकती हूँ। लाइक जेई तो हटाओ, ठीक है, 12th के लिए आराम से पढ़ सकती हूँ मैं, म्यूजिक के लिए 110% दे सकती हूँ मैं, करती नहीं हूँ। देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक्चुअली करना पड़ेगा, नहीं करोगी तो कहीं भी नहीं रहोगी। हम्म, फिर मैं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे। एग्जैक्टली, हाँ। क्योंकि तुमने वहाँ की हो ना यहाँ की हो, या तो फिर वहाँ हो तो पूरा बीच में मत लटको। या 8 घंटे कोचिंग क्लास पढ़ाई होमवर्क सब वहाँ का रहा, 8 घंटे 6 घंटे अपनी इसमें प्रैक्टिस, 8 से 14 घंटे, 10 घंटे फिर भी बचते हैं। 8 घंटे सो, 2 घंटे में तुम्हारे डेली छोड़ दे करो। सोशल मीडिया यूज करना है, फोन नहीं चलाना, 1 घंटा पकड़ लो दिन का, अपने लिए टाइम दो, आई वुड से अपने लिए टाइम दो, 1 घंटा दो, पर फिक्स रखो। ये नहीं कि तुम 2 बजे भी दोपहर में फोन चला रहे हो 1 घंटे, 5 बजे भी 1 घंटे रील चटका रहे हो, ये नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम दे दो अपनी लाइफ में, और सिर्फ 6 साल करोगे, सिर्फ 6 साल। अगर तुम्हें लगता है कि ये कन्वर्सेशन फ्रूटफुल निकले और तुम्हारी लाइफ में कुछ फ्रूटफुल हो, तो तुम्हें थोड़ा सा अपनी लाइफ को रूटीन में लाना पड़ेगा। कैसे रूटीन में लाना पड़ेगा कि सबसे पहले एक मॉर्निंग में उठने का रूटीन कर लो, बिल्कुल फिक्स कर लो, उठना ही है, संडे छोड़ दो, बस बाकी उठना ही है। ये सोचो कि मुझे मेरे लिए कुछ करना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर मुझे छत पर जाना है तो सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी ही पड़ेंगी, जो ऑप्शन है। इतनी लंबी जंप तो मैं मार नहीं लूँगा, पंख मेरे लगे नहीं, उड़ जाऊँ, स्टेप तो लेना पड़ेगा, है ना। तो 1 स्टेप एट अ टाइम। सबसे पहला स्टेप है, अपने आप को हार्ड मत करो। सबसे पहला काम क्या करो कि सुबह टाइम पे उठो, जो भी टाइम पर कर लेंगे तुम 8 बजे उठो, 5 बजे तो मैं तो बोल रहा हूँ अपने तुम्हें जैसे करना हो, तुम्हारी प्रॉब्लम, बट तुम्हारे पास इतना करना है तुम एटलीस्ट 7 घंटे की तो नींद लेनी है। बाकी तुम्हारे जो उसका 7 घंटे की नींद ले, 17 घंटे जो बचे हैं उसको यूटिलाइज करो ना। 1 घंटा फोन को दो, 1 घंटा डेली चोर्सेज हो गए, पढ़ो और किताब ले रहा इसलिए। ऐसा हमें लगता है कि हमारे रूटीन में लाइफ हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? रूटीन में लाइक एक आध दिन अगर मैं मस्ती मार लूँ, बकचोदी मार लूँ, ओके, तो यार जिंदगी है, अभी नहीं करोगे मस्ती मारो, मेरे को 2 दिन मारो, बट एक रूटीन होना चाहिए उसके बाद। ओके। वो अगर फॉलो हो रहा है महीने भर, हम्म, महीने में 4 दिन मस्ती चलेगी, दिक्कत ये भी है, मस्ती मारने के लिए मेरे पास दोस्त नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त होते, दोस्त देखो, दोस्त अपने आप आ जाते हैं जिंदगी में, अच्छे लोग ढूंढोगे तुम, अपने आप मिलेंगे, जिंदगी भर मिलते रहेंगे। और वो बचपन के दोस्त होते हैं, अगर चल जाए, नहीं तो हमारे करियर में दोस्त मिलते जाते हाँ, रहते एग्जैक्टली, हैं। हाँ। और डिपेंड करता है तुम्हारे साथ किसकी वाइब अच्छी मैच कर रही है। अभी जैसे मैं जेई कोचिंग दे रही हूँ, तब भी काफी हैं अच्छे दोस्त। ठीक है, कनेक्शन रखो। देखो एक होते कनेक्शन, खूब सारे रखो जितने मिलते हैं दोस्त हैं, वो फिर क्या कन्वर्सेशन के बाद दोस्त बनते हैं। हाँ, अभी exactly, ना, हाँ। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है कन्वर्सेशन का, होना भी नहीं चाहिए मेरा मानना है। फिलहाल रखो, दोस्त होना जरूरी है, भाई मेन चीज दोस्त होना जरूरी है, बट अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे तो तुम पढ़ते थोड़ी सको अच्छे दोस्त की तलाश है। बोर्ड लेके खड़ी हुई, अच्छे दोस्त की अच्छा तलाश दोस्त क्वेश्चन मार्क। संपर्क करें। आगे ना ऐसे नहीं कर सकती, तो अच्छी दोस्त नहीं, ठीक है, तो तुम में कमी हो मेरी, हाँ, कुड बी। तुम खराब लड़की हो, दोस्त तुम्हारे बनने नहीं चाहते हो मेरी। हाँ? ऐसा तो नहीं है, मेरी वाइफ तो अच्छी है। नहीं, मैं मेरी तुम्हारे दोस्त इसलिए तुम औरत खराब हो। क्या बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं अपना कजन रूप धारण कर लूंगी अभी। तो तुम बाहर गई पॉडकास्ट। तुम तो अब हो सकता है, तो दोस्त छोड़ो, अभी तुम्हारे पास टाइम पर में फोकस करना है कि तुम्हें उठना है, तो वैसे अपना रूटीन फॉलो करना आगे है। आइए। हाँ, कट हो रहा है। हाँ, तो बहुत सुबह से ज़्यादा। उठना है, और सुबह से उठना है तुमको, और फॉलो करना है अपना रूटीन। पढ़ाई, क्लास जाना है, क्लास से आएंगे, अपना टाइम दिया, उस टाइम में 2 घंटे सो लो, करना है जिम करो। अभी टाइम क्या हो रहा है भैया? अभी 10:30 हुए हैं। बंद तो नहीं हो जाएगा ये? चल रही हो जी 11:30 हो रहे हैं। ये हमारी घड़ी का सेल खत्म हो गया। पैसा दे दे प्लीज, पॉडकास्ट इसलिए बनाई थी, सब फेक था। कुछ भी फेक नहीं है यार,
ये अपना रियल कन्वर्सेशन था। ये हमारा ये एक्चुअली मैं भूल गई थी थोड़ी देर के लिए कि पॉडकास्ट कैमरा वैमरा भी चालू है हाँ हम लोग भूल गए हम लोग जेन्युइनली एज अ कजन बात कर रहे थे, ये मुझसे ऐसी बात करते हैं हाँ सिर्फ 1 घंटा बस। निकल गया। That's it. तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब थोड़ा फोकस करो अपने ऊपर, सेल्फ। ये मत सोचो मम्मी या पापा, दोस्त, दुनिया, एल हाँ। और ना प्यार ना लहसुन। I got to LLP. तो कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? तब सिर्फ फोकस करना है कि भाई मुझे मेरे लिए क्या करना है, मैं अपना वो कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, बस नथिंग एल्स। हम बोतल लाए थे दिखाने के लिए, पॉडकास्ट में अच्छी लगती है पर उसका यूज नहीं कर पाए। मैं कर लेती हूँ, क्या कर रहे हो यार तुम बोतल लोग? का यूज कर। बगल में एक आदमी भी सो रहा है। इनकी बीवी है। आदमी नहीं औरत सो रही है। मुंह पे छींक दे। मुझे तो उड़ा दोगे पानी में, ठीक है? पियो पूरा। हाँ तो आई बिलीव कि तू इस पर फोकस करेगी, काफी चीज मिल जाएगी। आंसर मेरे बाकी कुछ और लोग दे देंगे। अब मैं मुझे अच्छी लग रही हूँ, पोस्ट कर देना। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। ओके, स्मार्ट तो मैं भी हूँ, बस थोड़ा बाल झड़ गए हैं मेरे। स्मार्ट है भैया, लिटरली आप कैमरा खोल के देखोगे आपको लगेगा ये कौन है। अगर- आप इंडियन लाइफ अच्छे लगते तो कैमरे में उतने अच्छे नहीं अगर लगते। सुना दूं मैं अपनी जवानी के किस्से तो लोग मेरे पैर दबाने लग गए। चलो भाई, गुड नाइट, बाय। मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ। 1 मिनट पढ़ लीजिए। कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी इसमें काफी सारी अपन को एडिटिंग। अब हो जाएगा, मैं तो भी रात में बैठे बैठे कर लूंगी, बस में बैठे बैठे तो कर मैं भी लूंगी। बढ़िया करता हूँ। पोएट्री सुना दूँ अपनी मैं। अरे हाँ, आपका इसी में है क्या कोई? क्या बोल रही हूँ, तुम कैसा? मैं तो अपनी सुना रही थी। अबे ये सुनाने में थोड़ी लगाया हमने, भी अपने चर्चाएं इतनी नहीं कर रहे हैं। मैं सुना लूँ, मुझे क्या है। ये हेड फॉर चमार्स तो मिली, कोई चमार तो नहीं है आपके उसमें? पागल, चमार बोलना पाप है। कट कट कर देंगे, कट कर देंगे। कट कट कट। जय भीम लिखा है शीशे पे, VIP नंबर का राधा। थारी रेंज छोरे हैं ये चमारांगे। हम ब्राह्मण हैं भाई। हम ब्राह्मण हैं तभी हम बोल रहे हैं, हम जनरल वाले हैं तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। कोई चमार आपको ऐसा कौन सी अच्छी लग रही है? ये वाली आपने सुन चुके हो ना? बकवास पोएट्री मैं सुनो, पोएट्री किसे बोलते हाँ सुनाइए, ये इसका अलग भी। चलो कि थैंक यू बोल दो, हम लोग एक और वीडियो बना लेते हैं। हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में अगर मैंने हिंदी का प्रयोग ज्यादा कर दिया हो तो मुझे गंवार मत समझना। तुम वैसे ही गवाह हो, तुम्हें समझेगा मैं क्या। कैजुअल बन रही थी, आप ऐसा मेरा इंटरव्यू ले रहे थे लेकिन मैं कैजुअली बात कर रही थी ताकि सारे बच्चे मेरी बात समझें। सब बच्चों को बात समझनी चाहिए और सारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। आपके बच्चों को आप ज़बरदस्ती फोर्स मत करिए मेंस और नीट के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ और करना चाहते हो, आपके फोर्स में करना, जैसे कि ये आप उन पे थोड़ा ध्यान तो दो, क्या कर रहे हो? आप कुछ उन पे भी बच्चे- ध्यान देते हैं। रुको मुझे बोलने दो यार। कुछ बच्चे मुंह से बता देते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ओपन, जैसे मैं इनको कुछ बता देती हूँ कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं बोल पाते। जो नहीं बोल पाते उनके लिए उनके लिए ये वीडियो दिखा देना, अपना हाँ। कमेंट कर देना, मम्मी को भेज दूंगी मैं तुम्हारी। और अगर कोई ब्राह्मण वीडियो देख रहा हो तो डम्बाशी मेरी इंस्टाग्राम आईडी करना। अगर लोग सीरियसली नहीं लेंगे। सितंबर में 17 की हो जाऊंगी। 15 की है तू। मैं 2008 बॉर्न हूँ भैया, 8 मंथ होता है तो मैं 17 की हो जाऊंगी। मतलब 18 लाइसेंस हो जाएगा तेरे पास फिर चलाने का स्कूटी। अगर मैं आपको गेड़ियां मारते मिल जाओ। तो समझ जाना कि मेरा जेई मेंस निकल गया। थैंक यू Okay, गाइस thank फॉर you guys. वाचिंग। मिलते हैं, अब bye. हम लोग पोइट्री करेंगे।